The magnitude of electric charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, where C is stand for coulomb, which is SI unit of charge. SI unit of charge. Student, here I would like to remind you 1 microcoulomb is the smaller unit usually used in the numerical problem in 12th science subject as 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb, and 1 nanocoulomb is 10 to the power minus 9 coulomb. I suggested you must remember these two units. Okay, now we already discussed it. will आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले 2 टाइप के चार्जेस का नाम सीता और गीता, राम या श्याम रखा जा सकता था, और एंशिएंट टाइम में जब पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस था तो ये रेजोनियस और विट्रोनियस इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाता था। रेजोनियस का मतलब होता है अट्रैक्शन और विट्रोनियस का मतलब होता है रिपल्सन, लैटिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहेंगे कि इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन who arbitrarily assign negative charge to electron. Okay, now we will discuss some common method. First, let a close look for the entire discussion of this paper. Okay, I am giving you a close look. See it very clearly. I wrote some important points regarding to the above discussion as mentioned in the lecture number part 1. There are 2 type of charges. Like charges repel each other, and unlike charges attract each other. The smallest isolated fundamental particle which has charge is electron. The magnitude of electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, where coulomb is the C is stand for the coulomb, which is SI unit of charge. Okay, here I mentioned the 2 smaller unit in which are frequently used in the numerical calculation. 1 microcoulomb 10 to the power minus 6 coulomb, and 1 nanocoulomb 10 to the power minus 9 coulomb. Number 5, it was Benjamin Franklin who arbitrarily assigned negative charge to electron. Point number 6, you must be noted. What do you mean by neutrality? What is neutral? Neutral is not simply means that total charge is 0, but neutral means total number of positive charge is exactly equal to total number of negative charge, so that net sum is 0. So neutrality does not necessarily mean that body doesn't have charge. On the behalf of this discussion, we will proceed further how the body will charge. Now the another topic is started. Okay. Now, methods of charging. How will you charge the body? Number 1, charging by friction.
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, बहुत आसान है ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कंसीडर टू न्यूट्रल बॉडीज, कंसीडर टू neutral bodies A and B. Consider two neutral bodies A and B. Consider two neutral bodies A and B. मान लेते हैं हमारे पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है A, जिसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज हैं और 4 नेगेटिव चार्ज। तो एक तरीके से ये न्यूट्रल भी है, लेकिन इसके पास 2 लाइक चार्ज, 2 डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है, लेकिन फिलहाल न्यूट्रल है। अब ऐसे ही हम एक दूसरी बॉडी लेते हैं, इसको हम बी कहेंगे। अब इसमें चार्जेस की संख्या, नंबर ऑफ चार्जेस इज टेकन एज 5, 5 प्लस के 5 माइनस के। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बॉडी के पास चार्जेस ना हो। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 बॉडीज हैं ए और बी, एक के पास +4 और -4 यानी नेट चार्ज 0 है। वैसे ही एक बॉडी बी है जिसके पास नेट 5 प्लस के और 5 माइनस चार्ज है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल है, 0 है। ओके, नाउ सपोज 2 बॉडी रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। Suppose 2 bodies rubbed against each other. 2 bodies rubbed against each other, and separated. हमने एक दूसरे से रब किया और रब करके सेपरेट कर दिया। लेट ए इज नाउ चार्ज पॉजिटिव। ए के पास मान लेते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज बचा, और बी के पास टोटल नेगेटिव चार्ज बचा। सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ ए इज चार्ज पॉजिटिवली एंड बी इज चार्ज पॉजिटिवली, हाउ विल यू जज? आंसर इज वेरी सिंपल। Go to the class 11 chapter 2 periodic table in chemistry. You will find out a definition of work function or something like in atomic structure you explained by your chemistry teacher. What is a work function? Work function is the energy required to remove or eject an electron from the surface. तो obvious सी बात है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और जिस बॉडी के पास जो बॉडी का वर्क फंक्शन हायर होगा वो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो ये पता लगाना बहुत ही सिंपल हो जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने मान रखा है कि ए का वर्क फंक्शन बी के कंपैरिजन में कम है। ओके, तो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन आल्सो। वर्क फंक्शन, what is work function? The minimum energy, required to eject an electron
from the surface. अब यहां पर एक बात और मेंशन करता चलूं कि here we assume that A has lower work function. That's why it loses its electrons and hence charged positively. ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, राइट? क्योंकि उसका वर्क फंक्शन लोअर था इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, राइट? अब साहब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा एक मेथड चार्जिंग का, जिसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हम दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, दोनों न्यूट्रल होती हैं। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात और मैं आपको बताता चलूं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे। ये था आपका पहला मेथड चार्जिंग का, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आपने ये देखा कि हम दो न्यूट्रल बॉडीज को जब एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब ये कैसे पता करेंगे कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई या निगेटिवली? इसका तरीका बहुत आसान है। हमें वर्क फंक्शन पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने के डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि किसका वर्क फंक्शन किसके कंपैरिजन में ज्यादा या कम है। बहरहाल यहाँ पर हमने ए का वर्क फंक्शन कम माना है और बी का वर्क फंक्शन ज्यादा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और बी जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है। ओके।